Welcome student in second session from your textbook chapter number 13 why do we fall ill. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the health and diseases, and there is a factor causing that disease, internal factor and external factor. Today we are going to discuss about the types of diseases. So simply that disease means that discomfort, okay, means we feel discomfort, means uneasy. Okay, so now here is a two type, that congenital disease, okay, and that acquired disease. Clear? These are two types, and in acquired there is again subtypes are there, infectious and non-infectious. Clear? Means there is a that communicable, okay, and simply what we can call that communicable and non-communicable. Clear? Now next in that infectious disease, and again subdivision are there. There is a that contagious and non-contagious, okay, and there is a non-infection, there is a types are there, deficiency disease, metabolic disease, degenerative cancer, metabolic allergies and injuries. Clear this one? So these are non-infectious disease. means अगर एक person को injury है तो उससे second जो person है उसके साथ में physically contact में भी आता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसे ट्रांसफर नहीं होती. सो इन सिंपली दैट इज व्हाट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. क्लियर? सो नाउ वी फर्स्ट टेक दैट एक्यूट डिसीजेस. सो इन दिस एक्यूट डिसीज आर डिस्क्राइब एज बीइंग एक्यूट, ओके, व्हेन देयर सिम्टम्स आर क्विकली विजिबल. मीन्स इन दिस डिसीज सिम्टम्स जल्दी विजिबल हो जाते हैं. ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कॉमन कोल्ड, ओके, जो सर्दी होती है आपने देखा है, उससे सिम्टम्स इजीली विजिबल हो जाते हैं. सो इन दैट सिंपल वर्ड्स एक्यूट डिसीजेस आर दो डिसीज सिम्टम्स आर क्विकली विजिबल इन द बॉडी. सो दैट टाइप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड द एक्यूट डिसीजेस. नेक्स्ट वन इज क्रोनिक डिसीजेस. सो दिस टाइप्स ऑफ डिसीज आर लॉन्ग टर्म, ओके, मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म रहते हैं. जैसे आपने एक्यूट में देखा वो थोड़े समय के लिए थे, बट इन दिस क्रोनिक डिसीज लॉन्ग टर्म, ओके, विथ द सिम्टम्स लास्टिंग फॉर मंथ्स और ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस और ट्यूबरकुलोसिस, ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट क्रोनिक डिसीज. सो इन सिंपल वन लाइन दैट सिम्टम्स लास्टिंग फॉर मंथ्स, मीन्स लंबे समय तक उसके सिम्टम्स है जो बने हुए रहते हैं. बैक्टीरियल डिसीजेस प्रेजेंट सिंस बर्थ, ओके, सो these diseases are present since birth. They are caused due to genetic abnormalities, okay. Genetic means there is a heredity character, means one generation from another, means एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं, ओके, मिल जाते हैं, ओके. ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आएंगे, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पे आएंगे. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड डिसीज डेवलप आफ्टर birth. So these diseases are those which develop after birth. Acquired disease can be broadly classified into two types: communicable in that infectious disease, and that non-infectious disease means non-communicable, okay. From name only we can understand communicable means they can transfer, and non-communicable means non-infectious means they do not spread. So first we understand that infectious diseases. So that disease are caused by some biological agent or pathogen such as viruses, bacteria, protozoans and fungi. Pathogen और biological agent means what? Means जिसके वजह से disease होते हैं, okay, means that causing agent. In simply word we can say causing agent. So वो क्या हो सकते हैं? viruses, bacteria, protozoans, helminthes, nematodes and that fungi. So infectious that disease can rapidly spread from one person to the another by various means, okay, such as physical contact, means ये transfer भी होते हैं one person to another person, means there is a diseased person to healthy person, by means of various modes, that by physical contact, water, air, food and insect. So these are what? Vector, okay. इंसेक्ट को क्या कहेंगे आप? वेक्टर भी कह सकते हैं. जैसे आपने सपोज आप वन एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मलेरिया, ओके. आपको पता है मलेरिया, सभी को सिंपली पता है कि मलेरिया
मॉस्किटो बाइटिंग से होता है. सो दैट मॉस्किटो ओनली वेक्टर, ओके, बट वो एक्चुअली मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है. ओके, और वो क्या है, प्रोटोजोन से. वो क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोन से. सो दिस मीन्स प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, दिस इज अ कॉजिंग एजेंट. ओके, मीन्स पैथोजन. और वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, दैट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. मीन्स जो फीमेल एनाफिलिस वो सभी मच्छरों से नहीं होता है, स्पेसिफिक दैट मॉस्किटो इज देयर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू वो मीन्स की स्प्रेड होता है. सो वेक्टर और पैथोजन दोनों कैसे डिफरेंट थिंग्स है. समझ में आ गया सभी को. सो इन दैट मीन्स वेरियस मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, फिजिकल कॉन्टेक्ट, water, air, food and insect. So since these diseases are that communicated from disease person to healthy person, so they are known as infectious disease or communicable diseases. Clear this? Second, in that acquired diseases, non-infectious diseases. So these are not spread from infected person to healthy person. Okay, means that kind of disease is called a non-infectious disease. So these include above that described organic or metabolic diseases are also. So the non-infectious diseases are restricted only to those persons who are suffering from them. So means that these are not spread from infected person to healthy person. Non-infectious diseases may be caused from the lack of certain essential substances in our diet. For example, protein, vitamins, mineral, means these are called what, deficiency disease. So ये पर्टिकुलर होता है, जैसे अगर एक पर्सन की बॉडी में डिफिशियंसी है तो ऐसा नहीं होगा कि वो सेकेंड पर्सन की बॉडी में उसको ट्रांसफ़र होंगी वही सेम डिफिशियंसी. नो, मीन्स ये पर्टिकुलर टू दैट पर्सन. ओके, टू द पर्सन ऑफ दैट बॉडी. जो भी उसकी डाइट में मीन्स ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ये उससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिसीज होती है. ओके, फॉर एग्जांपल डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, दैट मरासमस एंड क्वाशियोकर डिसीज विल कॉज. फॉर विटामिन, विटामिन सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी डिसीज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स, लाइक दैट. क्लियर. नाउ सेकेंड, general wearing out of tissues as in old age. Means that in old age degeneration हो जाता है. Okay, means degeneration of that tissues. So that's why this is called the degenerative diseases. Means ये means जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो ये ओल्ड एज पर्सनस को इस टाइप के डिसीजेस होते हैं. थर्ड है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, just like cancer. Means cancer it is a not a disease. Okay, means वो उसका एक पर्टिकुलर नहीं, मीन्स कैंसर ये वो है कि आपकी बॉडी में अगर किसी टिश्यू, ओके, किसी भी पार्ट में अगर आपके टिश्यू की जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है या फिर वो लंबे समय से कोई आपको प्रॉब्लम है उस पार्ट से रिलेटेड और वो क्योर नहीं हो पाती तो वो किस में कन्वर्टेड हो जाती है, कैंसर में. ओके, मीन्स ये इसके अलग से इसके लिए कुछ भी माइक्रोब्स वगैरह कुछ भी अटैक नहीं करते. क्लियर. सो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो दैट टाइप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड इन सिंपली कैंसर. फोर्थ, डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मीन्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में होती है अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड डिसीज होते हैं. क्लियर. एंड फिफ्थ वन, इंजरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, बाय एक्सीडेंट. मीन्स आपको ये पता है जैसे इंजरी, जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उससे अगर आप गिर जाते हो मान लो तो भी आपको इंजरी हो जाएगी. डैमेज ऑफ एनी पार्ट मीन्स दैट फ्रैक्चर और एक्सीडेंट की वजह से भी कुछ बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. सो दैट टाइप ऑफ डिसीज इज ऑल्सो व्हाट, non-infectious disease. So these are generally means reason that non-infectious disease may be caused by them. Clear. Now next, now
we can see that differences between infectious disease and non-infectious disease. Okay, these are means acquired diseases, first infectious and second non-infectious. So first, that in infectious means that communicable disease, they are caused by अटैक ऑफ पैथोजन. ठीक है, ये किसे कॉज होते हैं? बाय अटैक ऑफ पैथोजन. क्लियर. एंड इन दैट नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल, दे आर कॉज बाय फैक्टर अदर देन लिविंग पैथोजन्स. ओके. सेकेंड, in that communicable disease, the disease are brought about by extrinsic or external factor. Clear. But in that non-infectious, the disease are mostly brought by intrinsic factor. means जो infectious disease है वो हमेशा मीन्स एक्सटर्नली, जैसे आप कॉन्टामिनेटेड वाटर वो ईट करोगे या फूड खाओगे कॉन्टामिनेटेड फूड. ओके. और जो इम्प्योर एयर है उसको इनहेल करोगे तो उससे रिलेटेड ये इन्फेक्शियस डिसीज इस पर होते हैं. और ये सब कैसे स्प्रेड होते हैं. बट इन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं? ये इंटरनल फैक्टर मीन्स आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, जनरल वेयरिंग आउट ऑफ टिश्यू एज एन ओल्ड एज. सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इंटरनल फैक्टर ऑफ इसके वजह से ये डिसीज कॉज होते हैं. कौन से? नॉन इन्फेक्शियस. क्लियर. थर्ड पॉइंट, इन दैट इन्फेक्शियस डिसीजेस कैन पास फ्रॉम डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ठीक है, मीन्स ये डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के वहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं. बट इन दैट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. मीन्स ये जो नॉन इन्फेक्शियस है वो पास नहीं होते. क्लियर. सो इन फोर्थ पॉइंट, इन दैट कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ऑकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और सम मीडियम. ओके, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होता है और आपने मीडियम पढ़े, मोड ऑफ दैट ट्रांसमिशन, एयर, वाटर, वेक्टर. दीज आर व्हाट मीन्स ऑफ मीन्स दैट ट्रांसपोर्ट. मीन्स जैसे कैसे वो डिसीज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन दैट फोर्थ पॉइंट, इन नॉन इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन इज एब्सेंट. इसमें ट्रांसमिशन नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट नॉन इन्फेक्शियस. फ्रॉम नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड नॉन infectious means there is transmission is absent. However, heredity disease are transmitted from parent to offspring. But heredity means जो अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को है फिर उनसे पेरेंट्स को आएगी और फिर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को वो डिजीज वो ट्रांसफ़र हो सकते. बट ये क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है और सिर्फ इसमें हेरिडिटी जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिटेड हो सकते हैं. क्लियर. फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. Now that in infectious diseases, fifth point, community hygiene can reduces the incidence of infectious diseases. Okay, community hygiene can reduce. अगर आप जिस सराउंडिंग एरिया में रहते हो अगर वहाँ पे कम्युनिटी मतलब मीन्स पूरा समुदाय, जैसे पूरी सोसाइटी, मीन्स ऐसा नहीं कि सेल्फ, पब्लिक हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है. इंडिविजुअल अगर आप कितने भी अलर्ट होकर आसपास का एरिया मीन्स इन्फेक्टेड है तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हो. क्लियर. सो कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दैट इन्फेक्शियस डिसीज. फॉर एग्जांपल कोल्ड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, pneumonia, malaria, chicken pox. These are the example of communicable disease. Now fifth point, in that non-communicable, community hygiene is ineffective in reducing the incidence of non-infectious disease. मीन्स इससे कुछ उनका रिलेटेड नहीं रहता है. ओके, क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस है. अगर एक पर्सन को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को भी डायबिटीज़ हो जाएगी उसके साथ में जो रहता है. नो. ओके. सो नाउ एग्जांपल ऑफ दैट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गॉइटर, like that. So these are the difference between communicable disease and non-communicable disease. Now that infectious diseases, there is a means in one point there is infection agents. Okay, now we will discuss in detail about the infectious diseases. Infection agents. Okay, so organism that can cause diseases, clear, are classified in wide range of categories. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi,
Okay, and some are that unicellular animals, the protozoans. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as different kinds of worm also. So common example of diseases caused by viruses are that common cold. Okay, that is some diseases caused by, there is means that viruses, there is a common cold. Okay, that dengue, influenza, fever, AIDS. So these diseases are caused by viruses, and means that typhoid, cholera, TB by bacteria. Means this diseases such as typhoid, fever, cholera, tuberculosis, anthrax are caused by bacteria, and that many common that skin infection, okay, are caused by different kinds of fungi also. And that protozoans, अभी आपको मैंने समझाया था कि मलेरिया दैट प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम कौन सी कैटेगरी में आता है, देयर इज ए प्रोटोजोन. So there is a protozoans, okay, caused many familiar diseases such as that malaria and another that kala azar, okay, means उसको काला बुखार कहते like that. Okay, so kala azar and that by the protozoa. So worms tend to cause a variety of intestinal infection and elephantiasis. और जो worm है multicellular, तो वो बहुत सारे ऐसे disease cause करते that is related to intestinal. Okay. Now all viruses are inside the host cell, whereas bacteria very rarely do. Means जो viruses होते हैं वो host cell के अंदर active होते, but outside the host cell inactive. Means viruses are link between living and non-living. Means उसको living की भी category में रखते हैं और non-living. And why it is so? Because that out of the body means host body, वो कैसे रहेंगे, इनएक्टिव. और जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. क्लियर दिस वन. सो दैट्स व्हाई देयर इज ऑल वायरसेस लिव इनसाइड द होस्ट सेल, वेयर एज द बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू. मीन्स बैक्टीरिया बहुत कम होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं. सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. मीन्स जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा कि कॉजिंग एजेंट है, बट इन दैट viruses, bacteria, fungi multiply very quickly, but worms multiply very slowly in comparison that. So these common traits means that many biochemical processes inside their cell are similar. As a result, many other members of the group, however, the same drug will not work against a microbe belonging to different group. It means that जैसे अगर बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया के लिए कोई वैक्सीनेशंस या कोई मेडिसिन बनी है तो वायरसेस के लिए वर्क नहीं करेगी. वो है तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, पर वायरसेस के लिए अलग होगी मेडिसिन और बैक्टीरिया के लिए अलग होती है. क्लियर दिस वन. सो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो एंटीबायोटिक्स. ओके, सो एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. देयरफॉर मोस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वर्क against many species of bacteria rather than simply working against one. Means जो बैक्टीरिया के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज की जाती. क्लियर दिस वन. तो सिंस वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे, सो वायरसेस सेम जो बैक्टीरिया पाथवे यूज करता है वैसा वायरसेस पाथवे यूज नहीं करता एट ऑल. सो दैट्स वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क इन द डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस. सो वायरसेस डू नॉट यूज द सेम पाथवे ऑफ दैट बैक्टीरिया. ओके, दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए कॉमन कोल्ड, लिसन, कॉमन कोल्ड इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस. ये अभी आपने देखा, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरसेस. So we have a common cold. Taking the antibiotic does not reduce the severity or duration of that disease. Clear? Means उसका duration वो कम नहीं कर सकता है. Instead, our body secrete an antiviral protein called that that viral protein called that interferon to combat the viruses of. So, however, if we get a bacterial infection along with the viral cold,
देन टेकिंग एंटीबायोटिक मीन्स आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और वायरल कोल्ड भी है. सो जो एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दैन एंटीबायोटिक विल हेल्प. ओके, इन दिस केस टू द एंटीबायोटिक्स विल वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट द वायरल इन्फेक्शन. तो आपकी बॉडी में अगर एक साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी और वायरल भी, तो आपने अगर एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते वो आपने ली, तो वो सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट में ही, बैक्टीरियल पार्ट ऑफ इन्फेक्शन में ही वर्क करेगी, वायरल इन्फेक्शन वाले पार्ट में वर्क नहीं करेंगी. सो सिंपली देयर इज ए सम डिसीजेस of that infectious agent, that viruses, okay, and name of the diseases. So common human diseases you know about that. viruses से कौन कौन से disease cause होते हैं? common cold, influenza, dengue fever, poliomyelitis, hepatitis B, AIDS, chicken pox, measles, mumps, SARS. SARS means that S is that stand for severe, A for that acute, R for respiratory, and S for syndrome. So severe acute respiratory syndrome is also caused by the viruses. Smallpox ये भी viruses होता है. Swine flu that is also by that viruses. Okay, swine flu जो अभी आपने इसके मीन्स before 2-3 years आपको सुनने में आया होगी, swine flu होता है, उसमें भी सर्दी खांसी एक जैसी रहती है. तो like that. So now next one that bacteria. ओके, इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज कॉज होते हैं? टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, एक्ने, टिटेनस, फूड पॉइजनिंग, लाइक दैट. सो दैट डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. नाउ फंजाई, एथलीट्स फूड, रिंगवर्म, ओके, एंड मेनी अदर दैट स्किन इन्फेक्शन. जो स्किन इन्फेक्शन जैसे आपने देखा होगा, जो वर्म्स हो जाते हैं वूंड जैसा, जैसे पहले इचिंग होती है उस जगह पे, और जैसे ही आप उसे इचिंग जैसे इरेज कर देते हो तो बाद में वो बड़ा रूप लेने लग जाती है. जैसे आपके नेल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे स्किन के, तो वो इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, बट स्लोली फैलता है ये इन्फेक्शन. ओके, सो दैट प्रोटोजोआ, ओके, दैट प्रोटोजोआ इन्फेक्शियस एजेंट, उससे कौन कौन से डिसीज कॉज होंगे? मलेरिया, काला आजार, अमीबियोइक डिसेंट्रीज. ओके, डिसेंट्री मीन्स देयर इज ए लूज मोशन, इससे रिलेटेड रहता है, and sleeping sickness, like that. So these diseases are caused by protozoa. and worm से कौन कौन से होंगे? intestinal worm infections and elephantiasis. Clear this one? So these are the common human diseases caused by infectious agent, that viruses, bacteria, fungi, protozoa and worms. Clear this one? Second point in that infectious diseases, means of spread of infectious diseases, means वो कैसे spread होते. So there is a various methods are there. Okay, so infectious disease is spread from one infected person to other normal person by various methods. Okay, first that airborne diseases. Airborne diseases, from name only we can understand, मीन्स थ्रू दैट एयर, जो एयर से रिलेटेड होते. और आपको पता है एयर का यूज अपन क्या करते हैं? फॉर द ब्रीथिंग पर्पस. सो कॉमनली दैट डिसीज इज रिलेटेड टू लंग्स, नोज, लाइक दैट. ओके, सो डिसीज मीन्स दैट कॉजिंग माइक्रोब्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द एयर. मीन्स दोज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द एयर, सो दैट इज कॉल्ड द एयरबोर्न डिसीजेस. So the transmission of these microbes occur through that the little droplet of cough, okay, out by an infected person. It means that जैसे सपोज वो स्नीज करेगा या खांसी होंगी उसके, तो आपने देखा स्नीजिंग जब भी अपन करते हैं तो बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आते, तो उन ड्रॉपलेट्स में उसके इन्फेक्शियस जो रहते हैं ना, कीटाणु रहते हैं, जो भी रहते हैं, मीन्स वो हो जाते हैं. तो फिर इसके थ्रू वो स्प्रेड होता है. और वहीं अगर अपन हेल्दी पर्सन को उसके सराउंडिंग एरिया में कांटेक्ट में है, तो वो भी आपको पता है एयर इज एवरीवेयर, तो जैसे ही वो इनहेल करता है, ओके, तो उसके अंदर मीन्स बॉडी के अंदर वो इंसर्ट हो जाते हैं वो डिसीज. सो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड द एयरबोर्न डिसीजेस. So the transmission of these microbes, okay, these microbes means जो airborne diseases से transfer होते हैं, occur through the little droplet coughed out by an infected person who sneeze or cough
a person in the vicinity of such a person can inhale this disease causing microbes and may become infected. So इस टाइप से वो क्या होगा, infected. So some diseases are there. There is common cold, tuberculosis, pneumonia. अब कॉमन कोल्ड तो आपको पता है, इसमें स्नीजिंग होती है, सर्दी खांसी. आपको देखा आपके घर में अगर किसी एक पर्सन को है सर्दी खांसी तो वो फिर ट्रांसफ़र हो जाती है. एक को सर्दी है तो दूसरे को भी ट्रांसफ़र है. न्यूमोनिया मीन्स देयर इज ए लंग्स से रिलेटेड होती है. एंड ट्यूबरकुलोसिस, इसमें खांसी आती है कंटिन्यूसली और उसमें ब्लीडिंग होने लग, मतलब कि ब्लड के साथ खांसी होती है. जब भी उसका स्पुटम मीन्स जब भी वो स्पुटम करता है या कफ करता है तो उसके साथ में ब्लड आता है. ओके, तो ये भी कैसा है, अगर किसी को भी टीबी है उसमें भी लेवल होते हैं. अगर फर्स्ट लेवल का है, सेकेंड, थर्ड, अगर थर्ड लेवल के पर्सन को टीबी और उसने आसपास ऐसे सराउंडिंग मीन्स दैट क्राउडेड एरिया में जैसे कफ और स्नीजिंग कर दिया तो सभी को उसी लेवल की टीबी हो जाती है, थर्ड लेवल की डायरेक्टली, क्योंकि उसके स्पुटम में, उसकी खांसी में वो उसी लेवल के माइक्रोब्स होंगे. क्लियर दिस वन. सो दिस इज व्हाट एयरबोर्न डिसीजेस, जो किससे होते हैं, जो किससे स्प्रेड होते हैं, एयर के हेल्प से होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एयरबोर्न. नेक्स्ट वन इज waterborne diseases. From name only we can understand by the contaminated water, so spread through water. So that cholera, okay, what is the name of that disease? Cholera. Infectious disease can also spread through water. So these occur when a stool from someone suffering from an infectious that gut disease. Gut means that alimentary canal, or another word we can say that इंटेस्टिनल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, गट से रिलेटेड होते हैं जो डिसीजेस सच एज कॉलरा, अमीबियोसिस, गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर. ओके, एंड यूज बाय द पीपल लिविंग नियर बाय, तो उसके आसपास के पीपल में उसी वाटर को यूज कर लेते. सो द कॉलरा infested that bacteria can enter new host through the water they drink and can cause the disease in them. Means in simply we can say that contaminated water. Clear this one. Now next one is sexually transmitted diseases. Okay, so what is the name of that disease? Syphilis and AIDS. Okay, these are the two types of diseases. Both of disease, okay, that pathogen are transmitted by sexual contact from one partner to the other. Means sexual contact से spread होते हैं. However, such that sexually transmitted disease are not spread by casual that okay physical contact. Casual that physical contact include that handshake, मतलब casually simply अगर आप handshake कर रहे हो, hugs कर रहे हो, sports अगर उसका खेल रहे हो, wrestling, okay, such as wrestling means कुश्ती लड़ना, और by any of other way in which we touch each other socially, so like that. सो इससे मीन्स वो सेक्शुअली दैट ट्रांसमिटेड इससे आर नॉट स्प्रेड बाय केस, तो इससे नहीं होंगे, वो किससे होते हैं, बाय सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से होते हैं. क्लियर दैट. फॉर्माइट बॉर्न डिसीजेस. ओके, दिस डिसीज आर्टिकल कमिंग इन कॉन्टेक्ट मीन्स अगर किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी आर्टिकल्स को मीन्स थिंग्स जो रहती है उसे टच किया है और फिर हेल्दी पर्सन उसे टच करता है. फॉर एग्जाम्पल इसे ओपनिंग द डोर, ठीक है, आपने डोर ओपन किया, वो हैंडल को अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया और फिर आप उसी को हैंडल को टच करके मीन्स हेल्दी पर्सन को अगर उसको टच करके होल्ड करके उसे यूज़ करता है तो वो डिसीज उससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ओके, सो दैट फॉर्माइट बोर्न डिसीज आर्टिकल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, दीज आर द आर्टिकल्स कम इन कॉन्टैक्ट से वो होता है. फॉर एग्जाम्पल डोर हैंडल्स, टैब्स, गारमेंट्स, करेंसी, यूटेंसिल्स, क्रोकरी एक्सेट्रा. इसका आपने अभी देखा होगा कोरोना डिसीज़ में, ठीक है, अगर किसी ने वहाँ पे मेटल की कोई चीज़ को अगर टच किया है, ओके, इसलिए वैसा ही पूरी तरह से लॉकडाउन था, ये आपने देखा हुआ है. ठीक है, मीन्स आर्टिकल्स के भी टच करने से, कांटेक्ट करने से, अगर किसी पेशेंट ने उस आर्टिकल को टच किया है, अगर उस चेयर में बैठा है, उस चेयर को टच किया और उस पर अगर फिर हेल्दी पर्सन आके बैठ जाता है तो उसे भी वो डिसीज़ इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके, अगर उसने कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है तो. सो दिस टाइप ऑफ डिसीजेज दैट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट आर्टिकल. क्लियर.
नाउ नेक्स्ट वन इज दैट स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वैक्टर्स. अब ये वैक्टर्स मैंने आपको पहले समझा दिया है. ओके, एज आई टोल्ड मीन्स देयर इज ए causing means transfer agent. Okay, animals can transfer infecting agent from a sick person to the another potential host. For example, there is that malaria. Okay, so many animals live with us. Okay, may carry diseases. These animals can transfer infecting agent from a sick person, sick means जो बीमार रहता है, and to another potential host means जो healthy है. So thus these एनिमल्स एक्ट एज ए इंटरमीडिएटर. ओके, और वैक्टर्स, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटर और वैक्टर. सो वैक्टर आर कैरियर ऑफ ए डिसीज और ओके और इन्फेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल दैट मॉस्किटोज. ओके, मॉस्किटोज दैट एनाफिलिस मॉस्किटोज आर वैक्टर ऑफ डिसीज and cause that the name of that disease malaria. In many species of mosquitoes, the females needs highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Hence, they feed on many warm-blooded animals, including the human. Now, third one, symptoms of diseases. Okay, first आपने इसमें क्या पढ़ा, infective agent. Second पढ़ा आपने means of transport. Okay, means कैसे spread होते. Third है symptoms of diseases. So there is a point of entry. Okay, place of infection of microbe inside human body means किस पॉइंट से इनकी एंट्री है, कौन से प्लेस को इन्फेक्ट करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी. आवर बॉडी इज दैट क्वाइट लार्ज इन कंपेरिजन टू एनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स बिकॉज वी आर व्हाट मल्टीसेलुलर. सो विच इज़ पैरासाइट एंड पैथोजन मीन्स जो भी माइक्रोब्स है पैरासाइट हो या एंड पैथोजन हो, तो उससे मीन्स दैट कंपेरिजन क्वाइट लार्ज. सो देर आर मेनी पॉसिबल एरियाज, ऑर्गन्स और टिश्यूज विद इन आवर बॉडी वेयर माइक्रोब्स में रिसाइड. क्लियर? सो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ माइक्रोब्स appear to have evolved to move to different parts of the body. In part, this infection is related, okay, that related to their points of entry. Point of entry. For example, if the microbes enter from the air, means आपको पता है एयर का अपनी बॉडी में कहाँ से that insert होता है, when we inhale. Okay, that nose, they are likely to go to the lungs, means that respiratory tract. Okay, so nose से इंटर होंगे और फिर वो कहाँ जाते हैं, that is the lungs. So this happens in case of bacteria which causes tuberculosis of that lungs. Okay, if the microbes enter through the mouth, remember that if the microbes enter through the mouth, they can stay in the lining of the gut as do typhoid causing bacteria. So means alimentary canal में digestive tract और gut से जो lining रहती है उससे related रहते हैं जो माइक्रोब्स माउथ से इंटर होते हैं. सो आपको पता है माउथ से मीन्स वी कैन ईट और दैट ड्रिंक वाटर. सो कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू दैट, सो कॉजिंग दैट स्पेशली दैट टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल. एंड दिस माइक्रोब्स कैन गो टू द लीवर लाइक दैट द वायरसेस दैट कॉज जॉइंडिस, हेपेटाइटिस बी. ओके, हाउएवर दिस पैटर्न इज नॉट फॉलोड बाय ऑल माइक्रोब्स. इनसे इस टाइप का पैटर्न वो ऑल माइक्रोब्स फॉलो नहीं करते. फॉर लाइक एग्जाम्पल देयर इज इन्फेक्शन ऑफ HIV. ओके, टेक्स प्लेस वाया द सेक्शुअल ऑर्गन्स बट इंटेंड्स टू स्प्रेड टू लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी. लाइकवाइज दैट मलेरिया कॉजिंग प्रोड्यूसर इंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट but it first goes to the liver cells and then to the red blood corpuscle mean RBC. Similarly, the virus causing that Japanese that encephalitis or brain fever enter through mosquito biting. Okay, but it goes to infected the brain. means वो क्या आता है, mosquito biting से होता है, but ये कहाँ जाता है, there is a Japanese fever in that brain fever means related to the brain, तो वो brain को infect करता है. clear this one? So now next one is symptoms and signs. okay, इसमें symptoms में आप फर्स्ट पॉइंट आपने पॉइंट ऑफ एंट्री पढ़ा एंड नेक्स्ट वन इज symptoms एंड साइन. तो symptoms आर दैट कलेक्टिव इंडिकेशन. इंडिकेशन का मीनिंग आपको पता है, जो आपको
बताते, ओके, ऑफ ए नंबर ऑफ डिसीजेस इन ए पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन, ओके, मीन्स दैट ये समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, तो जो आपको शो करते, ओके, सो their symptoms are evidence that point to the presence of disease. They are visible in the form of structural and functional changes in the body or body parts. So they indicate that there is something wrong in the body. So on the basis of symptoms of a disease, that physician search for definite clue. मीन्स जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिजिशियन के पास, तो आपसे वो पूछता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, मीन्स आपको क्या क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, तो जो भी आप बताते हो वो क्या है, सिम्टम्स है। फिर वो सिम्टम्स को क्लू मान के वो डिसीज तक पहुंचता है, ओके, सो डायग्नोज करता है फिर। सो दैट बेसिस ऑफ दैट सिम्टम्स, ओके, दैट फिजिशियन सर्च फॉर डेफिनेट क्लू और साइन ऑफ द डिसीज, ओके, मीन्स किस टाइप का डिसीज है। फॉर दिस दे आर दैट सर्टन इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंस्ट्रूमेंट एंड कंडक्ट दैट लेबोरेटरी। फिर जो भी मीन्स वो क्लू तक पहुंचता है, क्लू और साइन, ओके, वो अब डिसीजेस, तो वो क्या करता है, मीन्स उसका सैंपल, ब्लड का सैंपल टेस्ट करने के लिए लैब में भेजता है आपको, ओके, सो इन दैट टेस्ट इन पैथोलॉजिस्ट लैब, सो टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डिसीज। तो क्यों ऐसा करता है लैब में भेजने के लिए, कि वो पिन पॉइंट करता है कि वो किस टाइप का और कौन सा डिसीज डिटेक्ट एक्चुअल है। क्लियर दिस वन। So sign provide information about the presence of particular disease. Clear this one? So beside that various tissue specific affect the infectious diseases. So they can be other common effect also. So most of the common effects of a disease depend on the ability of a patient's immune system to become activated in response to an infection. Now next, fourth point, principle of treatment. So there is a two way to treat an infectious disease. First is what, to reduce the effects of the disease. First इसमें क्या ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हो, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, जो डिसीज हुआ है उसके इफेक्ट को कम करना। सेकेंड, टू किल द कॉज ऑफ डिसीज, या फिर उसको डायरेक्टली किल कर सकते हैं, किसको, जो भी कॉजिंग एज ए, टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज। सो दीज आर द टू वे टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीजेस। क्लियर दिस वन। Now next example, that next one is principle of prevention of disease. So there is a 3 limitations, okay, so following 3 limitations are normally that confronted while treating an infectious disease. So first one, there is once someone gets a disease, his or her body function gets damaged, okay, तो उसकी body function क्या हो जाएंगे, damage, and may never recover completely, और वो completely recover नहीं होते। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज टेक्स टाइम, और जो भी मीन्स डिसीज़ हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट को टाइम चाहिए। आपने देखा होगा, आप इजीली अगर जैसे मेडिसिन खा ली और सोचो आप कल ही अच्छे हो जाओ, तो नहीं, इट टेक्स द टाइम, ओके। नेक्स्ट, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज कैन सर्व एज ए मीडियम फॉर फर्दर स्प्रेड और इन्फेक्शन टू अदर पीपल। क्लियर। सो दीज आर द 3 लिमिटेशन इज देयर। सो दैट्स वाई प्रिवेंशन is better than cure. The prevention of disease is better, means disease का prevention कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय किसके, cure के, means इलाज के, okay. So general way of prevention of infectious diseases, there is a first general way of prevention of infectious disease, that public hygiene is one basic key to prevention of infectious diseases, okay. ये आपको अभी पता है पब्लिक हाइजीन का, मीन्स क्राउडेड प्लेसेस पे, ओके, जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिसीज़ होंगे तो इन्फेक्शंस अगर डिसीज़ है तो वो स्प्रेड होते हैं, ओके। सो फर्स्ट दैट टू अवॉइड एक्सपोजर टू एयरबोर्न माइक्रोब्स, एडॉप्ट लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, मीन्स आपको ऐसी जगह पे ज़्यादा मीन जो एयरबोर्न माइक्रोब्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आपको नहीं आना। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट दैट एक्सपोजर टू वाटर बोर्न माइक्रोब्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, और आपको ऑलवेज सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही यूज़ करना चाहिए, ओके, कॉन्टामिनेटेड वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप इससे वाटर बोर्न डिसीजेस से बच सकते हो। थर्ड,
To avoid that vector-borne infectious, we can provide clean environment as it would not allow mosquito breeding. Breeding means पनपना, मीन्स जहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज. ये आपने डेंगू में आपने देखा है कि साफ पानी में, क्लीन वाटर में डेंगू के जो मॉस्किटोज वो सर्वाइव करते हो. ओके, मीन्स ब्रीडिंग मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज पनपते हैं. सो इट मीन्स दैट इज ए वहाँ पे वाटर को कलेक्शन नहीं करके रखो. ओके, मीन्स वाटर का कलेक्शन अगर होगा आसपास का एरिया में, जितना इन्फेक्टेड होगा, इन्वायरमेंट मीन्स अपना सराउंडिंग एरिया, वो आपका इन्वायरमेंट है. ओके, सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड योर इन्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. सो आपको टू अवॉइड दैट वेक्टर मीन्स जो मॉस्किटोज है और अनदर दैट माइक्रोब्स, तो उसको आप अवॉइड करना चाहिए कि आप उसके कांटेक्ट में नहीं आ सको. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो क्लीनलीनेस मीन्स आसपास का एरिया क्लीन करके रखना चाहिए. क्लियर दिस वन. So these are the 3 prevention precaution are there. So prevention is better than cure. Always remember that. Next one, specific way of prevention of infectious disease. Another specific way क्या है, immune system. Okay, means आपका immune system जितना strong होगा तो आप disease से उतने अच्छे से fight कर सकते हो. So that immune system and immunizations. Okay. So specific way of infectious diseases. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. Means आप क्लास में बैठे हो, अगर किसी को sneezing means cold cough ये सब हो रहा है तो आप उसके सराउंडिंग एरिया में तो होंगे. सो बट नॉट ऑल देम विल केस द इन्फेक्शन. तो सभी को इन्फेक्शन नहीं होता है. ओके, ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में है तो सभी को इन्फेक्शन होगा. ओके, तो दिस मे बी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उसको कुछ भी कॉमन कोल्ड कफ का अफेक्ट नहीं होगा, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको अफेक्ट होगा. ये आपने इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी वर्क, इम्यूनो चार्ज, ये वर्ड आपने अभी बहुत ज़्यादा सुनने में आपको आया है. ठीक है, तो आप इससे वेल फैमिलियर विथ इम्यूनिटी सिस्टम. सो चिल्ड्रन दैट usually escape cold and cough infection because their immune system immune system is that involving certain white blood cells means WBC. okay, that immune system normally fights the microbes. तो वो क्या करता है इम्यून सिस्टम में कि जो WBC है सिस्टम नॉर्मली फाइट्स ऑफ द माइक्रोब्स. तो जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंटर हुए उससे फाइट करता है. सो WBC दैट बिकम एक्टिव एवरी टाइम डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी. सो इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, जिसकी स्ट्रांग होती है तो जो उसकी बॉडी के अंदर WBC है, इसको आप एज ए सोल्जर भी कह सकते हो. ठीक है, जैसे आपको पता है सोल्जर क्या करते हैं, फाइट. सोल्जर मीन्स जो सैनिक रहते हैं तो जो भी मीन्स दुश्मन आते हैं उसके ऊपर अटैक करते, तो वैसे ही अपनी बॉडी में वर्क्स एज ए सोल्जर जो WBC रहता है. ठीक है, तो जैसे ही आपकी बॉडी में इंटर होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स तो उसके ऊपर अटैक करते हो, उसको डिस्ट्रॉय करते. पर ये कब होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. सो दैट सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मली फाइट्स ऑफ द माइक्रोब्स. WBC become the active every time disease causing microbe enter the our body. So that these cells become active every time disease causing microbes enter our body. Now next one is second basic principle of that infection disease is the availability of proper and sufficient food. क्या होना चाहिए, sufficient food. उससे immunity power भी आपका strong होते जाता है for everyone. This is the second basic principle to prevention of that infection diseases. Now next topic is vaccination. Okay, vaccination, it is a process of injecting either a killed or weakened microbes. Okay, microorganism. It is the process of injecting either a killed or weakened that microorganism in a person body so as to raise his immunity level. Means ऐसा एक टाइप का डोज से वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सके. और तब हो जब आपको फिर वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है तो अगर वो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंटर होता है तो वो उससे फाइट करता है. ओके, तो इसे ही कहते हैं वैक्सीनेशन. क्लियर. सो
these days there is no that reported case of small pox. Okay, small pox के कोई भी नहीं होते, अभी आपको इतने कैसे सुनने में नहीं आते anywhere around in the world. So but a recent has 100 years ago smallpox epidemic were quite prevalent, क्योंकि उसके क्या हो गए, वैक्सीनेशन उसका कर दिया गया. However, it was that identified that patient who had that contract smallpox one develop immunity to that disease for life. मतलब एक बार अगर smallpox हो गया और फिर उसको वैक्सीनेटेड कर, मीन्स आपकी बॉडी में एक बार smallpox हो गया तो आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते, इम्यूनिटी पावर मीन्स उससे कि वो फैमिलियर हो जाते, फिर वो सेकेंड टाइम जब आपकी बॉडी में इंटर करते तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, तो क्योंकि सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप आपकी बॉडी में हो जाती है. तो आपने ये सुना ही होगा, अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है दोबारा उसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. ठीक है, बट अभी उसके वैक्सीनेशन होने लग गए इसलिए वो अभी इतनी जनरली आपको सुनाई में नहीं आता है कि स्मॉल पॉक्स से सफरिंग है. सो that contracting viral diseases once meet prevention from the subsequent attack of the same diseases. When the immune system first encounter an infectious microbe, it responds against it and then remember it's specifically. So the next time that particular that microbes or its close relative enter the body, the immune system respond with greater vigor and this eliminate the infection even more quickly than the first occurrence of the disease. और सेकेंड टाइम जब जैसे इन्फेक्टेड होता है तो वो डिसीज जल्दी क्योर हो जाता है बिकॉज आपकी बॉडी में सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो गई. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इम्यूनाइजेशन. ओके, अब ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है? इट फंक्शन इन द फॉलोइंग मैनर. ओके, लाइक व्हेन वैक्सीनेशन इज गिवन, that is if a killed or weakened microbes injected the body, okay, and the body fails to recognize it and it responds, it secretes certain antibodies so that try to or kill the infection causing foreign agent. means जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप होती है तो उसको फाइट करती है. ओके, फॉरेन दैट. So these antibodies once met remain in the body and protect us throughout our life from a particular antigen. Means आपकी बॉडी में एक बार एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है तो वो थ्रू आउट आवर लाइफ मीन्स वो पूरे लाइफ टाइम के लिए होती है फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट. ओके, एंटीजन जो भी आपकी बॉडी में फिर उसी टाइप का सेम एजेंट आपकी बॉडी में नहीं. जैसे आपने सुना है कि कोरोना एक बार जिसको हो जाता है दोबारा फिर से नहीं होता है. इट मीन्स उसकी बॉडी में सेल्फ वो इम्यूनिटी मीन्स दैट एंटीबॉडी डेवलप हो गई जिससे कि वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है. सो एंटीबॉडीज मीन्स दैट ट्राई और टू किल द इन्फेक्शन कॉजिंग फॉरेन दैट एजेंट. फॉर मीन्स जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल जो नहीं है तो उसको फाइट करता है उससे. क्लियर? सो फर्स्ट वैक्सीन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796 अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. किसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी सबसे पहले? स्मॉल पॉक्स. और हु प्रिपेयर्ड दैट? एडवर्ड जेनर. Nowadays many vaccines are given to a newborn child in order to raise its immunity. और फिर जैसे मीन्स जैसे स्मॉल चाइल्ड होते न्यूबॉर्न बेबी उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग मीन्स उनका जो एक मीन्स ड्यूरेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है. आपने देखा होगा पोलियो की भी वैक्सीन पहले सभी को मीन्स अधिकतर पोलियो दिखता था. मीन्स वो उसमें पोलियो में क्या होता है जो लेग्स अफेक्टेड होता है. ओके, उसमें लेग्स अफेक्टेड हो जाता है और जो बैकबोन रहती है तो उससे रिलेटेड होता है तो उसका वन लेग से जो छोटा रह जाता है. ठीक है, तो इस टाइप से रहता है. मीन्स वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट पोलियो. तो वैक्सीनेशन करने से अब पोलियो ज़्यादा किसी को नहीं होता है. क्लियर दिस वन? थैंक यू.